امریکہ میں لیگل اور انلیگل جابس. امریکہ میں لیگل اور انلیگل جابس. آپ وزٹ ویزا پہ جا کے جاب پرمنٹ ویزا بھی لے سکتے ہیں، اور کوئی شخص اگر آپ کو $22 یعنی $2200 میں کام دے رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کو رہائش دے رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کروں گی. اکثر لوگ جب جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یا US کے لیے اسپیشلی، تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں. میں نے سوچا کہ میں اپنے ایک چھوٹے سے بلاگ میں نا آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور بتاؤں. امریکہ میں جو لوگ لیگل جابس کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی جو ڈفرینٹ ادارے میں جو لوگ جابس کر رہے تھے ان کی تو آبویسلی وہ ایک الگ ہی سیلری ہوتی ہے، کیونکہ کون کس ڈپارٹمنٹ میں کوئی کیسے، جیسے ہر ملک میں اپنے حساب سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ لیگل جابس کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی 4000 ہوتی ہے اگر وہ اسٹورز میں ہے، اور اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں، تو ڈپینڈ کرتا ہے. ایون کہ میں نے ایسے بھی لوگوں کا ماشاء اللہ سے سنا تھا، جو میرے کچھ فرینڈس تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پر آور کے حساب سے $35 بھی کما رہے تھے. اب $35 کے حساب سے ان کی منتھلی جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ 30,000 مطلب ڈالرز ان کی تنخواہ بھی بن سکتی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ انلیگلز جاتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جابس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جابس ملتی لیکن تنخواہ کا ریشو جو ہے نا وہ بالکل کم ہوتا ہے. ویسے تو بہت سارے لوگوں کو یہ ساری باتیں بالکل پتہ ہے، لیکن میں جو میرا ایکسپیرینس رہا، جو میں لوگوں سے ملی اٹھی بیٹھی، جو کچھ لوگوں نے جن لوگوں نے میرے ولاگس دیکھے، تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں. سب سے بیسٹ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مطلب جو وٹ واز مائی ایکسپیرینس، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ہر انسان کو کر لینا بھی چاہیے. اگر آپ لیگل جو لوگ رہ رہے ہیں، اوبیسلی ان کے لیے تو ہر چیز بالکل ہی آسان ہے. لیکن جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، یا کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، تو وہ اگر وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک ذاتی مشورہ یہ دوں گی کہ آپ وکیل ہائر کریں اور وہاں پہ جاب پرمنٹ لیں. جاب پرمنٹ آلموسٹ آپ کو 8 منتھس کا ملے گا، ٹھیک ہے. اور جاب پرمنٹ لینے کے ساتھ ساتھ جب اگر آپ اس کی فیس کی بات کریں گے تو اوبویسلی اس کی فیس $800 بھی، $800 بھی، اور 1000 بھی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وکیل پاکستانی ہے یا گورا ہے. اچھا، جاب پرمنٹ ویزا میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومت 5 سال کے بعد، بہت ہی بیسٹ بات ہے، کیونکہ میرے بہت سارے ایسے فرینڈس تھے، میں اب یوٹیوب پہ ان کا نام تو نہیں لینا چاہتی، کیونکہ پھر وہ پبلکسٹی، یا سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے ہمارا نام کیوں لیا، تو اچھا نہیں لگتا ہے. اینی وے، بٹ میں جو بات کر رہی ہوں، یقین کریے بالکل ٹھیک ہے، سچ ہے، اور یہ 100% ہے. آپ اگر جاب پرمنٹ ویزا ان لیگل جانے کے بعد بھی اگر لے رہے ہوتے ہیں، وکیل ہائر کرنے کے بعد، کیونکہ وکیل جب آپ کا کیس بناتا ہے نا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ساری آپ کی اسٹیٹمنٹ اور باقی چیزوں کو جب آپ کا کیس پٹ اپ کرتا ہے، تو یہ چیز آپ 5 سال تک جب اپلائی کرتے رہتے ہیں، اوبیسلی آپ 6 منتھ کام کرو گے، وکیل کو $1000 بھی دو گے، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ $2200 میں کام کر رہے ہو، یا فار ایگزامپل آپ $2500 میں کام کر رہے ہو، یعنی $2500 میں، تو $1000 تو آپ کے مطلب سمجھے گا $800 آپ کے چلے گئے آپ کے وکیل کو. باقی آپ کے پاس بچے کتنے؟ 1100، 1000، یا سمجھو 1200 سم تھنگ لائک دیٹ، ٹھیک ہے. لیکن میں کم سے کم میں ہی آتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو جی $1000 بچ رہے ہیں، سمپل. اب اس میں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو آپ جاب کر رہے ہوں گے وہ $10 کے اندر، اگر آپ جاب پرمنٹ لیتے ہیں اور آپ کا وکیل آپ کو دلوا دے گا، تو $16 to $18 آپ کو ملیں گے، $20 نہیں ملیں گے. یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ کہاں پہ ملے گا؟ جیسے آپ نے کسی مارٹ میں جاب کیا، یا فار ایگزامپل آپ نے کسی مال میں جاب کر لیا، کسی پمپ پہ جاب کی، یہ ان جگہوں کی ریکوائرمنٹ سے متعلق میں بتا رہی ہوں. ہاں، کوئی آئی فون کے کسی آفس میں جاب کر رہا ہے، کوئی کسی بڑی فرم میں جاب کر رہا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف کے حساب سے نا، تو وہ اس کو اس کے حساب سے، جہاں پہ ایک لیگل انسان کو جاب کا تنخواہ ملتی ہے، اسی طرح جو ان لیگل جاب کرنے کے لیے وکیل کو ہائر کر کے کرتا ہے تو اس کی پھر بھی کم ہوگی. بٹ دا پوائنٹ، 5 سال تک جب آپ اس چیز کو فالو اپ کرتے رہیں گے، فائنل آف دا ٹائم آئی ریئلی ٹو مچ ریسپیکٹ ٹو امیرکا اینڈ امیرکن پیپل. دے آر سچ اے فینٹاسٹک اینڈ آئی لو امیرکا. کیوں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، میرا قدرتی اللہ کی طرف سے بھی ایسا کچھ ہے کہ مجھے امریکہ سے بہت محبت ہے. لوگ بہت اچھے،
फाइनल ऑफ द टाइम 5 साल के बाद वहाँ की हुकूमत खुद बखुद आपको जो है ना वहाँ पे जॉब परमिट दे देती कि जी आप दफा हो जाओ जाओ और काम करो और खुद भी कमाओ और हमारे मुल्क की इकनॉमी को भी कमा के दो। 5 साल तक जब आप ये अप्लाई करते 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 कर जाते, फिर फाइनल ऑफ द 7 to 8 years के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वाज व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, मैं लास्ट नाइट भी अभी किसी फ्रेंड से बात करी थी तो मुझे यही बता रहे थे कि यार देखो 5 साल के बाद ऑब्वियसली यहाँ अमेरिका की जो हुकूमत है ना वो बंदे की जो मुशक्कत और चीज़ों को देख के ना वो तरस खा के वैसे ही दे दी, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा है कि वो चाहते हैं कि लोग आएं, बट ये कि वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनको अपने मुल्क में काम करने देते हैं जो कि उनके मुल्क में रह के क्राइम ना करें, क्योंकि उनके अपने ज़ाती लोग तो खुद ही बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं। हमारे इंडियंस हो गए, हमारे पाकिस्तानी हो गए, सऊदी के हो गए, दुबई के हो गए, नेपाल के हो गए, जापानीज हो गए, वट एवर जिन जिन कंट्रीज़ के लोग होते हैं, ऑब्वियसली वो जाके वहाँ पे या अपनी कंट्री में भी ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी हुकूमत है। आप जब इस तरह का अप्लाई करेंगे इनलीगल के हिसाब से, तो ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि ये चीज़ आप अपने वकील से जब कहेंगे वो आपको 1000% श्योरिटी से लिख के देगा कि जी हाँ जी आपको जॉब परमानेंट मिलना है और मिल जाएगा। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं ये समझती हूँ कि मैं आपको एक ज़ाती एडवाइस ये दूंगी कि अगर आप वहाँ पे गए हैं और आपके कोई आपको लग रहा है कि ही इज़ टू मच सिंसियर विद मी और ही मतलब बहुत ही लॉयल है और आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है या बहुत कुछ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह के बहुत सारे वली बहुत सारी जगहों पे मौजूद है, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपने खुद से जॉब करनी है, फॉर एग्जांपल आप विजिट वीज़ा के लिए गए हो, ठीक है, लीगल्स करने वाली जॉब्स के लोगों के लाइफ स्टाइल एक डिफरेंट है, मतलब उनका एक लाइफ अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पे किया हुआ है। जो लोग लीगल होंगे ना वो आपको कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, बस आपको वो घुमाएंगे फिराएंगे और उसके बाद अल्लाह से दुआ करेंगे कि भाई चले जाएं। बट मैं ये समझती हूँ कि अगर आप खुद वहाँ से मतलब अगर आप गए हैं विजिट वीज़ा पे, खुद से पहले तो आप बराए मेहरबानी किसी के साथ रूम शेयर कर लें। रूम शेयर करने का जो रेंट है वो ऑलमोस्ट, अगर आप बहुत हाई फाई अच्छी जगह पे रहते हैं किसी बेहतर माहौल में एक बेहतर जगह पे, तो ऑब्वियसली उसका $500 रूम शेयर करने के साथ उसका रेंट बनेगा रूम शेयर का, ठीक है। उससे गिरे हुए पे आ जाएंगे तो 400 है, फिर 300 भी है, इवन $100 में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके पैसों के हिसाब से उस जगह की कैटेगरी, रूम, लोग और गंदगी और डस्ट और फला फला आपको फेस करना पड़ेगा। एक तो आप जाएं रूम शेयर करके आप किसी के साथ भी रहें। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी है, इंडियंस लोग हैं, और इसके अलावा वहाँ पे जो मलेशियन लोग बहुत सारे ऐसे जो अपना कारोबार करके बैठे हुए हैं, वो इलीगल जॉब्स करने के लिए लोगों को ज़रूर मतलब रख लेते हैं, उनको कोई इतना लांझा नहीं होता है। बट लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, हाँ आप तो अमेरिका नहीं आना, आप अमेरिका में जॉब कर ही नहीं सकते, अमेरिका में तो हो ही नहीं सकता ये वो। मैं परसों तरसों वन ऑफ माई फ्रेंड वी वर्क टुगेदर, नॉट टू मच लेकिन थोड़ा थोड़ा, और मतलब पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा बड़ा नाम है, सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने जो जैसे कहते हैं ना कि व्यूवरशिप की वजह से आप लोगों आप मतलब खुद अमेरिका में बैठे हुए हैं और लोग कहते हैं डोंट कम टू अमेरिका। भाई तुम्हें अल्लाह पूछे तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो, गरक हो जाओ अपने मुल्क में, फिर यहाँ पे मतलब वहाँ पे आप क्यों रह रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लगा। कोई भी बंदा जाना चाहता है, आप उसको क्यों डरा रहे हैं ना। एम्बेसी आपको प्रॉब्लम करता है, मैंने इससे पहले एक व्लॉग बनाया था, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कोई एम्बेसी में इतना लांझा नहीं है, ठीक है। आप अपना प्रोफाइल अच्छा करें, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सेकंड वन, लोग कह रहे थे कि यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते, ये नहीं कर, आप खुद जाके वहाँ पे जॉब करते हैं लीगल, फिर उसके बाद आप वकील हायर करते हैं, फिर खुद से जब आपको तकलीफें परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, ग्रेजुअली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके वो कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ अवेयर करें ना, वो चीज़ बताएं ना लोगों को, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जैसे आपको हुआ। अच्छा, अगर अमेरिका में कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल आपको रिहाइश भी देता है, खाना भी अगर आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसा होता है, जो लोग लीगल जॉब्स कर रहे होते हैं उनका लाइफ स्टाइल में उनके लिए हुकूमत की तरफ से बहुत सारे इतने बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बड़े नाशुक्रे पन में वो हर चीज़ कर रहे होते हैं जैसे हम लोग अपने मुल्क में कर रहे हैं या करते हैं। एनीवे, तो कोई दोस्त अगर आपको इस तरह हेल्प आउट कर रहा होता है, तो मैं ही समझती हूँ कि $2500 अगर आपकी तनख्वाह बनती है $10 के हिसाब से, 8 घंटे आपने काम किया है तो ये हो गए $80।
उसमें से जब आपके महीने के अंदर 4 दिन तो आपकी छुट्टी के निकल कर आ गए, ठीक है जी। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको रिहाइश दे रहा है, अगर आपको फ्री में खिला पिला भी रहा है, $1000 तो वैसे भी आपका बच ही रहा है। और ऐसा इलीगल जॉब्स के लिए जब आप जिन दोस्तों यारों के पास काम कर रहे हैं तो वो लोग जानबूझ के रिहाइश देते हैं और कर भी देते हैं, तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि था $1000 तो वैसे भी आपका बच रहा है। और द पॉइंट इज दैट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ चीज़ों को मॉनिटर किया, जो मैंने देखा कि एक इंसान यहाँ से अगर जा रहा है जॉब करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, और $2500, ये मैं कह रही हूँ, वैसे $2500 होगी नहीं, $2200 बनेगी तनख्वाह 4 छुट्टियों के बाद, यानी 26 डेज के जो आपके पैसे बनेंगे वो बनेंगे 2200 या $2300 लगा ले, खुद से बता रही हूँ मैं, ठीक है। और द पॉइंट इज दैट कि अगर $1000 तो आपकी ऑकोमेंटेशन में आएगा, क्योंकि अगर आप बेहतर जगह पे रहेंगे तो $400-500 आपके वो चलेंगे, $200 का आपका खाना हो गया, $100 का एनी हाउ आपका ट्रैवल का तो बनना ही बनना है, क्योंकि आप कभी तो निकलोगे यार, कहीं तो जाओगे, और कहीं घूमते तो फिर वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। एनीवे, तो $1000 समझे आपने अपने निकाल दिए। अगर आपके $1000 के अंदर, आपके मुल्क के अंदर आप रहते हुए अगर कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह में 2 लाख 2.5 लाख रुपए बन रहे हैं, तो अगर आप समझते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके वहाँ रह सकता हूँ, तो आप ज़रूर जाएं, ठीक है। और आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आगे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है जी। तो जो लोग वाकई काम करके अपना फ्यूचर वहाँ करना चाहते हैं तो कर ले, और जो लोग समझते हैं कि नहीं यार हम यहाँ पे इतना कमा रहे हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत और इतनी सारे इलाजे नहीं कर सकते, तो वो यहीं पे रहें। तो ये बड़ा एक बेसिक पॉइंट था जो मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँ, समझ गए ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, एज टू लाइक यहाँ पे रहते हुए लाइफ बहुत चेंज है। वहाँ पे जब भी जाएंगे ना, तो आप बराए मेहरबानी अपने राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जो बातें हो रही ना, वो आप अपने साथ रहने वाले किसी कुलीग से या किसी बंदे से कुछ भी मत डिस्कस करें, खुदा के वास्ते। आपको लगता है कि वाकई कोई अल्लाह का वली आपका वाकई बहुत अच्छा दोस्त है ना, आप उसको बताएं कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्योंकि इनलीगल जब आप जॉब कर रहे होंगे ना, तो वही दोस्त हो सकता है आपकी 911 पे कॉल करके आपकी कंप्लेन भी कर सकता है, जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्वेयर टू गॉड, ऐसे कोई बेगैरत लोग हैं और ऐसे कोई घटिया लोग हैं जो मतलब वो इंडियंस को गाली दे रहा होता है, मुस्लिम को गाली देता है, हर कंट्री का अपनी कंट्री के लोगों को ही कह रहा होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप वहाँ पे रहते हैं, जो भी करते हैं, आप अपने मतलब गोरों के साथ दोस्ती करें, बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट भी हैं, जिस तरह की भी उनकी लाइफ है वॉट एवर यार, बट बहुत अच्छे लोग होते हैं, आपको बहुत सारी वेज बताएंगे, तरीके बताएंगे फॉलो अप करने से रिलेटेड। शुरू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होगा, पानी का मुझे बड़ा मसला हुआ था, लोग बड़े खूबसूरत हो जाते बकौल उनके, जी मैं तो काली हो गई थी, इवन कि मेरी आंखों में खड्डे भी पड़ गए थे, बाल भी गिर गए थे। हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे, लोग बड़ा कह रहे होते हैं, खाने का बड़ा मसला है, हलाल हराम का भी बड़ा मसला हो रहा है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने हराम हलाल वहाँ पे भी खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। सेकेंडली ये कि आपने जो भी प्लान करना है अपने साथ वाले फ्रेंड से खुदा के वास्ते मत डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुँचा दें। तो जो भी बात करनी है, या आप अपनी कंट्री में रहते हुए भी लोगों से डिस्कस करके उसको फॉलोअप कर सकते हैं, उनसे भी फॉलोअप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट आपका दोस्त वहाँ पे वही होगा जो आपका वकील है। अगर आप जॉब परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो जॉब परमानेंट के अलावा जो जॉब परमानेंट नहीं भी फॉर एग्जांपल अफोर्ड कर सकता, नो प्रॉब्लम, जाएं अमेरिका में, खुदा की कसम, आई लव गोरा, बहुत अच्छे हैं। आप कोई क्राइम ना करें, कोई मतलब कोई ऐसी स्टूपिड हरकत ना करें जिससे उनकी इकनॉमी को नुकसान हो, आपको अल्लाह की तरफ से अच्छे लोग मिलें, आप जाएं, काम करें, 6 महीना काम करें, 6 महीने के बाद वापस आ जाएं, लेकिन खुदा के वजह से 6 महीने से पहले ट्रैवल ना करें। न्यू ईयर है, ठीक है कर लें, वैलेंटाइंस डे तब आप कर लें, क्रिसमस आ गया उससे पहले अगर आप गए तो ठीक है। और आपने सबसे बेस्ट, जून जुलाई में टिकट्स नहीं करवानी, जून जुलाई अगस्त में नहीं करवानी है, और अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में आपने टिकट नहीं करानी, क्योंकि अगर हमारी टिकट बनती है, अब तो $1200 की हो गई, तो वो टिकट पड़ेगी आपको $1500 से $1600 की। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, मैंने कहा आपको बता दूं कि अगर आप विजिट वीज़ा पे भी जा रहे हैं तो सेव योर मनी।
अच्छा, जो लोग अमेरिका ट्रैवल करना चाहते हैं विजिट वीज़ा से रिलेटेड भी, तो मैं बायो में एक लिंक दूंगी, उसको आपने क्लिक करना है, उसको देख के आपको सारी हाउ नो हो जाएगी कि हमने अप्लाई करने के बाद एम्बेसी में किन चीज़ों को फेस करना और क्या नहीं करना। दूसरा, लोग जो डराते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और द सेकेंड वन इज़ दैट, छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया, मुझे लगा कि शायद आपको इसमें से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग व्लॉग्स बना के डरा रहे होते हैं। सब कुछ पॉसिबल है वही इस दुनिया के अंदर, वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू अचीव, ठीक है। तो मैं इजाज़त लेती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और स्पेशली जो लोग नए आए हैं, मैं तो थैंक्स कहूँगी, फॉलो करें। और इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है सबा खान जी के नाम से, सबा खान जी के नाम से मेरा फेसबुक भी है, तो उसको भी देखें। और कुछ अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किसी टॉपिक पे व्लॉग बनाऊं तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आई डू माई सेल्फ। टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।